So now we have a problem statement. Example 3.1. Estimate the drift speed of conduction electron of copper wire which has cross-sectional area 10 to the power minus 7 meter square. Okay. Carrying a current 1.5 ampere. Density of copper is given as 9 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉपर का जो वेट है इट कम्स आउट टू बी 9 into 10 to the power 3 kg and its atomic mass is 63.5 U. Find the drift speed of the electron and compare it with the thermal speed of copper atom, okay, at 300 degree Kelvin. And also we need to compare with the speed of the propagation of electric field which causes drift motion. ठीक है, तो मतलब हमें ड्रिफ्ट स्पीड को स्टडी करना है. पहले हम ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर अलग अलग वैल्यूज़ के साथ उसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो दूसरे वैल्यूज़ हैं वो कितने बड़े हैं या फिर कितने छोटे हैं. ठीक है, तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स वी विल ट्राई टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, A is equal to 10 to the power minus 7 meter square. It is given I is equal to 1.5 ampere. Rho is given as 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. ये सारी चीज़ें गिवन है और हाँ, ये कॉपर की जो हमारी एटॉमिक मास है 63.5 U है. ऑलराइट, सो वी हैव बीन गिवन अ फॉर्मूला VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA. अभी ये तो आपको पता ही है E की वैल्यू क्या है, 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, समझ में आ रहा है? वंडरफुल. 1.6 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power minus 7. So all details we have, just we need to find the value of n. So in order to find the value of n, some more details have been given. ये रो की जो वैल्यू है ना, इसे हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 1 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है, इसमें व्हाट इज द वेट गिवन 9 into 10 to the power 3 and mole concept says that 63.6 into 10 to the power minus 3 kg has how many atoms of copper? 6 into 10 to the power 23 Avogadro's number. तो जितने हमारे एटम्स होंगे उतने ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना? ठीक है, तो 9 into 10 to the power 3 kg has got 6 into 10 to the power 23 divided by 63.6 into 10 to the power minus 3 multiplied by 9 into 10 to the power 3 kg. Wonderful. So somehow this way we have managed to find the value of n. So put these details and get the answer. तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश कर ही लेते हैं. 10 to the power minus 26 हो जाएगा. 10 to the power minus 26 जो ऊपर जाकर के 10 to the power plus 26 हो जाएगा. तो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.6
अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से इट कम्स आउट टू बी 1. थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन हम ले सकते हैं. ओके, इसको थोड़ा सा आप देखो ज़रा. 10⁻26 एंड इट कम्स आउट टू बी 10⁻29. 23 प्लस 20 प्लस 3 26 प्लस 29. ठीक है, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं और 10⁻29. कूल. तो n की जगह पे 6 इंटू 10⁻29 मल्टीप्लाइड बाई 9, 63.6. तो अभी दिस गेट्स कैंसल्ड और यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 10⁻3. ओके, ये वीडी की यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड. तो इसको ऐसा करते हैं कि 10⁻20 इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो 63.6 इंटू 9 10⁻3 इंटू 10⁻3 millimeter per second. This gets cancelled. So 63.6 divided by 54. It comes out to be 1.1, approximately 1.1 millimeter per second. हाँ, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, विच इज़ वेरी लेस, विच इज़ वेरी स्मॉल नंबर. ठीक है, 1.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है. लेट्स कंपेयर विद द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम at 300 degree Kelvin. So I hope this part you have understood. So I'm erasing this part. Okay, Vd is equal to 1.1 millimeter per second we have calculated. So in order to find the value of thermal speed, we have been given a formula: half mv square is equal to 3 by 2 kBT. Okay, what is kB? It is Boltzmann constant. और v square जो होगा, this gets cancelled. 3 kBT divided by m. 1.38 into 10 to the power minus 23 into 300 divided by m. Now we need to find the value of m. तो एक एटम की का वेट कितना होगा? तो 6 into 10 to the power 23 एटम्स का वेट जो है कितना है? 63.5. तो एक का क्या होगा? 63.5 divided by 6 into 10 to the power 23 किलो. ये ग्राम है ना, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3. अपन सारी कैलकुलेशन जो हैं वो SI यूनिट में ही हमें करनी है. दैट्स ग्रेट. तो 63.5 into 10 to the power minus 26 divided by 6. Alright, cool. तो ये जो m है, m की वैल्यू लेट्स पुट इट ओवर हियर. तो सीधे यहाँ पर डाल देते हैं. 63.5 into 10 to the power minus 26 और डिनोमिनेटर ऊपर चला गया 6. ये कैंसिल हुआ तो ये 10 to the power minus 3 रह जाएगा. ओके, ये v स्क्वायर है.
तो we can take this approximate 1.4, 3 into 1.4 into 18 into 10 to the power 2, 63.5, और ये ऊपर जाएगा ना तो ये 5 हो जाएगा. ओके ठीक है. कैन इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं. 64, यहाँ पे 9, 32, यहाँ पे 0.7, 16, तो 2.1 into 9 divided by 16 into 10 to the power 5. तो 21, we can say it is 4. तो अभी v की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 3 divided by 4 into 10 to the power 2 under root 21. ठीक है. तो it comes out to be almost कितना है? 4 होगा. 4 into 0.75, 4 into 0.75 into 10 to the power 2. 4 into 0.75 means 300. Wonderful. Meter per second. हाँ, so हमारी v की वैल्यू क्या आ रही है? 300 मीटर पर सेकेंड. तो v जो है 300 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर के जो मॉलिक्यूल हैं वो 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रहे हैं, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी ऑन एन एवरेज जो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 1.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि ईच इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाय ह्यूज नंबर ऑफ अदर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो जैसे ही वो मूव करते हैं तो वो एक दूसरे से उनका कोलिजन होता रहता है, जिसके चलते जो है वो किसी एक यूनिफॉर्म, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है. ठीक है. अच्छा, लेट्स कंपेयर दिस वैल्यू विथ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है वो उसकी स्पीड जो मेजर हम करते हैं, it comes out to be it is equivalent to the speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So which is again very high. So in this question what we have understood that the drift velocity, the drift speed of the electron is very small. अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम ड्रिफ्ट, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हम 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो उसके अगेंस्ट, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी. इलेक्ट्रॉन जो इसकी ड्रिफ्ट स्पीड है वो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, एंड विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द थर्मल स्पीड ऑफ द एटम. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम्पल 3.1. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि कैलकुलेशन में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें की हैं, लेकिन इट टुक लॉट ऑफ टाइम. सो थैंक यू वेरी मच.